Namaste to all. Here in this video we are going to discuss the part 2 of question number 5 relating to funds flow analysis. So part 1 में only working notes we did. These working note 1, 2, 3 we have done, and we are doing statement of funds flow and statement showing changes in working capital. Okay, because he didn't ask us directly to do this is working note 4, ये 4 है. Okay, statement showing funds from are last in operations, ये कर रहे हैं अपन. Okay, so थोड़े देर के लिए I already made the answer so that we can wrap up it quickly. आपको जो भी difficult thing was there, I was explained in the part 1. Please watch part 1 before watching part 2. Okay, वहाँ पे पूरा जो भी डिफ़िकल्ट पार्ट है वो पूरा क्लियरली हाथ से करते हुए बताए. यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दिखा दे रहा हूँ मैं. सो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर अप्रोप्रिएशन एंड टैक्स के लिए क्या करना पड़ता, क्लोजिंग P&L स्टेटमेंट माइनस ओपनिंग. सो क्लोजिंग में आपको 50,000 है, सॉरी 5 lakhs है, एंड ओपनिंग्स वी आर हैविंग 2,50,000. सो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, करंट ईयर नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशंस एंड टैक्स 2,50,000. We need to add appropriations here, right? In appropriations, in the adjustment it is given proposed dividend or declared dividend. They give proposed dividend 40,000. Once we need to add this proposed dividend when it is given in the adjustment in FFO, again dividend paid will become an application in funds flow statement and it will be shown as application. So to 2,50,000, if you add 40,000, balance will be net profit after tax 2,90,000. To this we need to add provision for tax, but in this case there is no provision, nil. So net profit before tax will become 2,90,000. Hope you are understanding till here. From here on, very simple. Non-operating expenses incomes we need to take. So depreciation given, हाँ एक एक करके माइनस करेंगे. Add non-operating and non-fund expenses. इसमें वर्किंग नोट 2 में अपने को डिप्रिसिएशन आया 2,000 rupees, and loss on sale of building is 11,800. In working note 3 it is there. So together it will be 13,800 we need to add to the 2,90,000. So total will be 3,800 plus preliminary expenses written off is given 14,000 minus 12,000, 2,000. This is also will be added as non-operating expenditure. So you will get total 3,05,800. From this we need to deduct non-operating incomes which are not there, nil. So funds from operations will be source, that will be rupees 3,05,800. Hope till here you have understood. हाँ, फ्रॉम हियर ऑन बच्चों का खेल आप खेलते हैं वही है. सो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. ये करंट ईयर 2017, ये प्रीवियस ईयर 2013. वर्किंग कैपिटल एक इंक्रीज कॉलम, डिक्रीज कॉलम. करंट असेट इंक्रीजेस, वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस. करंट asset decreases, working capital decreases. Here we are having first inventories 3,50,000. So 3,50,000 minus
3 lakhs। ओके, आंसर प्लस में आ रहा तो इंक्रीज में लिख दो बस। ट्रेड रिसीवेबल्स 2,45,000 माइनस 1,62,000 92,000, दैट इज ऑल्सो +1। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दो, आंसर आ जाएगा। एंड 80,000 माइनस 40,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, सो टोटल 40,000। नेक्स्ट, टोटल करंट असेट्स is equals to 6,84,000, 5,02,000. Next, let us see the liabilities part. Okay, current liabilities, trade payables 1,80,000, 2,30,000. So current liability increases, working capital decreases. तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा या डिक्रीज हो रहा? एक मिनट, करंट असेट इंक्रीजेस, वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीजेस, वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस। यहाँ पे कुछ अमाउंट्स बताते वक्त गलत बता दिए ये लोग। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा? नहीं, सही है। दिस इज करंट ईयर कॉलम ना, दिस इज करंट ईयर, दिस इज प्रीवियस ईयर। थोड़ी देर के लिए परेशान कर दिए, कुछ नहीं, राइट। सो 2,30,000 प्रीवियसली इट इज, नाउ इट इज 1,80,000। अब सिंपली क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दो, आंसर जो आ रहा उसका ऑपोजिट करना है। तो माइनस में आ रहा तो प्लस में लिखो, इंक्रीज में 3,000 माइनस 6,000, माइनस 3,000 आएगा, लेकिन प्लस में लिखना है इंक्रीज में, राइट। नेक्स्ट यू डू टोटल ऑफ दिस करंट लायबिलिटीज का टोटल कर दो, ये 1,83,000, 2,36,000। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज नथिंग बट योर वर्किंग कैपिटल, 5,01,000 and 2,66,000 it is there। इंक्रीज ज़्यादा है, डिक्रीज कम है, तो डिक्रीज कॉलम में नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लिखना है। वही चीज़ें यहाँ पे भी A माइनस बी करके लिखना है। A माइनस बी इज नथिंग बट योर वर्किंग कैपिटल। सो होप टिल हियर यू हैव अंडरस्टूड। 8 मिनट में ख़त्म हो गया, और इसके लिए मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ बाकी क्या आंसर में क्या करना, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट करना है। तो जो सोर्सेस में आएगा वो सोर्स में लिखो, जो एप्लीकेशन में आएगा वो एप्लीकेशन में लिखो, क्योंकि ये लास्ट है, आपको खुद करना है बस। ओके, सोर्सेस वाले सोर्स में लिखो, एप्लीकेशन वाले एप्लीकेशन में। डायरेक्टली कौन सा कहाँ पे आता, 2 वीडियोस में मैंने बता दिए, तो आप डायरेक्टली कर दो, मैं नहीं बताने वाला हूँ।